Hello dear students, I am Professor Dinesh Patel from JG College of Commerce, Ahmedabad. The topic which we are covering today is a part of Gujarat University syllabus FY BCom Semester 1. The name of the subject is Principle of Economics 1, Unit number 4, Production Function, and the topic which we are covering today, that is Law of Variable Proportion, which is also known as short-term production function. Now, before we start discussing our today's topic, what is law of variable proportion, because the law of variable proportion is a part of short-term production function, we must know what is production function. So, as you can see here, that the production function indicates or production function shows functional or a mathematical relationship between the inputs and the output. So the production function shows functional or mathematical relationship between input and output. Here input means the factors of production. As we know that there are main 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur, with which we are able to produce any commodity. And here output means the production. So production function shows mathematical or functional relationship between the inputs and the output. As you can see here that I have given 2 different definitions also. One is given by Samuelson and another is given by Stigler. If we talk about the definition given by Samuelson, as you can see here that production function according to Samuelson, it shows technological relationship which explain the quantity of production that can be produced with the help of factor of production, that is inputs. But in the production function, it is assumed that the technology was given. So within a given technology, how much quantity we can produce with the given help of inputs, that is known from the production function. Same is given by Stigler also. So I hope it is clear now what you mean by production function. Production function shows functional relationship or a mathematical relationship between the input, that is factor of production, and the output, that is production. Now for more clarification, what is production function? I have given here the mathematical expression of production function. You can see here that production function can be mathematically expressed in terms of this formula. Here the formula is Q is equal to F into bracket LD, L, C, E and N, which indicates Q here indicates output, that is production. So Q is for production, while this F indicates functions, while this all the bracket numbers, that is LD indicates land, L stands for labor, C stands for capital, E stands for entrepreneur, and the N stands for other factors. And when we combine all these 5 factors, that is land, labor, capital, entrepreneur and other factors, it is known as inputs, which is also known as factors of production. So here this Q is our output, all these factors are our inputs, and in between that this F indicates function. So we are saying that the production function shows functional relationship between the input and output. For more clarification, let's see here that again here the Q, now the Q we know that Q indicates output. This F indicates function, and this all inputs, factors of production are our inputs. So the production function shows functional relationship between the input and output. Here it is also
very necessary to clear that in this case, suppose here this Q, that is output, is a dependent variable, while this all inputs are independent variable. Now what you mean by independent variable and the dependent variable? Here in this production function, this output Q depends on input, but the input does not depends on output. Let's see once again for more clarification. What I am trying to clarify here is, in the production function, this Q indicates output, F indicates function, and this all indicates input. Now here the Q is a product output which is a dependent variable, and all these factors are the independent variable. Why? Because here the output depends on input. अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो हमको इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, पर अगर प्रोडक्शन नहीं भी होगा तो हमको इनपुट की जरूरत फिर भी वहीं के वहीं रहेंगे वो, यानी कि आउटपुट करने के लिए इनपुट चाहिए, इनपुट के लिए आउटपुट नहीं चाहिए. दैट इज वाई द आउटपुट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट, बट इनपुट डज नॉट डिपेंड्स ऑन आउटपुट. Now before we start our answer, it is also mandatory to know what we mean by short period, what we mean by long period, what we mean by fixed factor of production, and what we mean by variable factor of production. So let's discuss first what is short term and what is long term time period. Here you can see that short run or the short time period is that period where firm cannot vary all the quantity of all the factors of production. It means short run is a period where some factors are variable factors and some factors are fixed factors. तो short period कौन सा period है जहां पे फर्म सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकती है. कुछ फैक्टर हमको फिक्स रखने पड़ेंगे और कुछ फैक्टर को हमको वेरिएबल यानी चेंज करने के लिए मानना पड़ेगा. वहीं दूसरी ओर, इफ वी टॉक अबाउट द लॉन्ग रन टाइम पीरियड, देन इन द लॉन्ग रन ऑल द चेंजेस आर पॉसिबल. सो फर्म कैन वेरी द क्वांटिटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी चाहे फिक्स फैक्टर हो या चाहे वेरिएबल फैक्टर्स हो, दोनों को फर्म क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है लॉन्ग पीरियड में. एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. तो हमने क्या सीखा? In the short period of time, there are some fixed factor and there are some variable factors. But in the long run, all the factors are variable factors, so all can be changed. So now, for more clarification, we must discuss what is fixed factor of production and what is variable factor of production. Now, first we discuss what is fixed factor. Fixed factor here means what? Fixed factors are those factor which will be kept constant in the short period. यानी जब short period की बात आती है in economics, what we mean by short period? Generally in economics, short period indicates less than 1 year and the long period indicates more than 1 year period. So in the short period, less than 1 year period, this fixed factor will remain fixed. It cannot be changed. That is why it is known as fixed factors. But in the long period, this fixed factor will not remain fixed, it will be changed. Like for example, if we see here that the land, building and machine, these three are the example of fixed factor. अगर हम यहाँ पे मशीन की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, तो शॉर्ट टाइम में हम हमारी कंपनी का प्लांट, साइज, मशीनरी सब कुछ चेंज नहीं कर सकते. इट विल टेक सम टाइम. सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ लेस देन 1 year पीरियड टाइम, इट विल रिमेन फिक्स. तो फिक्स फैक्टर कौन से फैक्टर है जो शॉर्ट टाइम में फिक्स रहते हैं पर लॉन्ग टाइम में वो फिक्स नहीं रहते. लॉन्ग टाइम में बाद में अगर मुझे मेरी लैंड का साइज बढ़ाना है, बिल्डिंग का साइज बढ़ाना है, मशीनरी चेंज करनी है, तो आई कैन डू दैट. सो इन द लॉन्ग पीरियड ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स. तो फिक्स फैक्टर किसको बोलेंगे? जो सिर्फ शॉर्ट टाइम तक फिक्स रहे, नॉट इन द लॉन्ग रन. दूसरी तरफ अब देखिए वेरिएबल फैक्टर्स. नाउ वेरिएबल फैक्टर मींस व्हाट?
those factor which can be changed are known as variable factor. But variable factors are those factor which is not only change in short period but it can be changed in the long period also. तो वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर है जो शॉर्ट टाइम में भी चेंज हो सकते हैं और लॉन्ग टाइम में भी चेंज हो सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबर एंड रॉ मटेरियल. इफ वी टॉक अबाउट द रॉ मटेरियल then the quantity of raw material can be change not only in the short period but also in the long period. Okay, अगर हम लोग मान लो कि कॉस्ट की बात करें, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कॉस्ट, तो कॉस्ट के अंदर मान लो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, टेम्पररी लेबर का कॉस्ट है. दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड विच आर द वेरिएबल फैक्टर कॉस्ट. ओके, सो यहां से हम क्या सीख रहे हैं बेटा? यहां से अब हमको यह सीखने मिल रहा है कि हियर वी हैव गिवन टू टाइम पीरियड्स. वन इज शॉर्ट टाइम पीरियड एंड अनदर इज लॉन्ग टाइम पीरियड. इन द शॉर्ट पीरियड देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर. वन इज फिक्स फैक्टर एंड अनदर इज वेरिएबल फैक्टर. तो शॉर्ट पीरियड में दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म पीरियड इट हैज ओनली वन फैक्टर एंड दैट इज वेरिएबल फैक्टर. व्हाई? Because as I said earlier, those factors which are fixed in the short period are converted into variable factors in the long period. तो जो शॉर्ट में फिक्स थे वो लॉन्ग में वेरिएबल हो गए और जो लॉन्ग रन में वेरिएबल थे, शॉर्ट टर्म में वेरिएबल थे, वो लॉन्ग में वापस क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे. तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ही फैक्टर बचता है, दैट इज वेरिएबल फैक्टर. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ व्हाट इज शॉर्ट पीरियड, व्हाट इज लॉन्ग पीरियड, what is fixed factor and what is variable factor. Now before we start our answer, it is also important to know what type of production functions are there. In this answer we are learning the short run production function, but there is another type of production function is also there which is known as long run production function. So in the types of production function there are two types. One is known as short run production function and another is known as long run production function. This short run production function is known as law of variable proportion, which is also known as returns to factor, while the long run production function is known as returns to scale. This is the difference. Now if we talk about the meaning of short run and long run production function, then we have just discussed what is short period, what is long period, what is fixed factor, what is variable factor. So now it is clearly clear to you. Now in case of short run production function, only one factor, suppose there are four factors, land, labor, capital and entrepreneur. Out of the four factor, if I keep one factor, suppose labor, as a variable factor, so I have to keep one factor as a variable factor which can be changed and I have to keep all other factors constant. तो शॉर्ट पीरियड किसको बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पे फिक्स फैक्टर भी होंगे, वेरिएबल फैक्टर भी होंगे. तो अभी जो हम आंसर पढ़ने वाले हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसके अंदर हमको किसी एक फैक्टर को क्या मानना है? फिक्स मानना, वेरिएबल मानना है और दूसरे सारे फैक्टर को क्या मानना है? फिक्स मानना है. So there are two type of factor. One factor will remain variable and all other factor will remain fixed. And in the long run production function, which is known as returns to scale, here because it is related to long run, long time period. And as I told you that in the long period, all the factors are variable factors. There are no fixed factors. So in the long run, all the inputs can be changed. All the factors can be changed. Okay. Now here, what you mean by short run production function or what you mean by law of variable proportion? In short, we will discuss when within a short period of time or given a period of time and in the given state of technology, the technology is already given to you, when one variable factor is continuously added on the fixed factor of production, and when we keep one factor as a variable factor and keeping all other factor as a fixed factor and we are keep adding the variable factor on the fixed factor, initially what will happen?
the total production will change. Okay, either it will change at an increasing rate or it will change at a decreasing rate. That is a different thing. But within a given period of time, given state of technology, when one factor is kept as a variable factor and another factor is kept as a fixed factors, and we keep adding the variable factor on the fixed factor, definitely there will be change in total production, and that change is known as short run production function or the law of variable proportion. Here I have given the short run production function in which the Q indicates output, this F indicates function, this L indicates labor, which we assume that it is a variable factor, and here this K bar is our capital, that is another factor. K bar, it means it is a fixed factor. Okay, so here this labor is kept as a variable factor and this capital, which is another factor, is kept as a fixed factor. That is why it is a short run production function, because as I told you that in the law of variable proportion or in the short run production function, we have to keep at least one factor as a variable factor by keeping all other factors as a constant factor. Now this is from where our answer will start. This is the meaning of law of variable proportion. As you can see here, that what we mean by law of variable proportion. Now it is very much clear that the law of variable proportion indicates the short run time period. So law of variable proportion short term production function है, तो इसीलिए आप देखो कि मैंने फर्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या लिखा है, the law of variable proportion shows the relationship between the input and output in a short time period. So पहले आपको ये याद रखना है कि law of variable proportion short term production function है, and it was developed by which economist? Alfred Marshall. So Marshall has developed this concept. Now if we talk about the meaning of law of variable proportion, please pay attention. This is very important topic. Now when we talk about the law of variable proportion, the meaning of law of variable proportion, it shows that when we keep one factor as a variable factor and keeping all other factors as a constant factor, and if we are keep adding more and more variable factors on the fixed factor, the total output will change. Initially it will change and it will increase at an increasing rate, but after that, as we keep adding the variable factor on the fixed factor, what will happen? The total product will increase, but the rate at which it increases is going to diminish. So initially when we keep adding fixed factor on the variable factor, the total product will increase at an increasing rate, then it will increase at a decreasing rate, and if we keep adding the variable factors on the fixed factors, and because of the excessive variable factors on the fixed factor, it is also possible that at the last eventually the total product will decrease when there is no change in technology. तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, कि अगर आपको टेक्नोलॉजी दी हुई है, यानी कि आप टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो एट अ गिवन टेक्नोलॉजी अगर आपने किसी एक फैक्टर को क्या मान लिया है, वेरिएबल फैक्टर मान लिया है, मान लो कि लेबर को मैंने वेरिएबल फैक्टर मान लिया, और किसी और फैक्टर को आपने क्या मान लिया, फिक्स फैक्टर, मान लो लैंड मैंने फिक्स फैक्टर मान लिया, तो लैंड चेंज नहीं हो सकती, लेबर चेंज हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लैंड तो अब हमारी फिक्स रहेगी, लैंड को हम फिक्स रखेंगे और उसके ऊपर हम लेबर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, एम्प्लॉय करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे फिक्स लैंड के ऊपर लेबर वेरिएबल फैक्टर बढ़ते जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट के अंदर चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? इनिशियली टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा एट अ इंक्रीजिंग रेट, फिर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, और लास्ट में क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते ही जा रहे हैं फिक्स फैक्टर के ऊपर, तो जमीन कम बचेगी, लेबर उसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा, ओवरबर्डन ऑफ वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा, और उसकी वजह से बाद में हो सकता है कि टोटल प्रोडक्ट जो अभी तक इंक्रीज हो रहा था, नाउ इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. सो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. For more clarification, I have given two definitions which you can read it out.
One is given by Marshall, which you can write down in your exam. It will be helpful. And another is given by Professor Samuelson. Okay. So I hope it is clear to everyone. Now everyone will understand what is law of variable proportion. Now we know that every law is basically based on certain assumption. Here we are discussing the law of variable proportion, and it also has certain assumptions. Like in the first assumption, as I told you earlier, that this law of variable proportion is a part of short-term production function, and in the short run, there are two type of factor, fixed factor also and variable factor also. So here the first assumption is, here we keep only one factor as a variable factor and keeping all other factors as a constant factors. इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर मैंने इस आंसर में बेटा वेरिएबल फैक्टर के लिए मैंने लेबर लिया है, तो लेबर यहां पे क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा। और फिक्स फैक्टर के लिए मैंने यहां पे लैंड लिया हुआ है इस आंसर में, तो लैंड हमारा क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, लैंड चेंज नहीं होगी, लेबर चेंज होते रहेंगे। तो एक फैक्टर को हमको वेरिएबल मानना था, बाकी के सारे फैक्टर को हमने फिक्स मान लिया है। फिर दूसरा यहां पे क्या लिखा है, जो भी हमने वेरिएबल फैक्टर यूज किया है, ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस। तो मैंने यहां पे लेबर को कौन सा लिया है, वेरिएबल फैक्टर लिया है, तो जितने भी लेबर मैं काम पे लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल द लेबर्स आर हैविंग इक्वल एफिशिएंसी, यानी कि सारे के सारे लेबर होमोजीनियस है, सबकी कार्य क्षमता, सबकी एफिशिएंसी, टेक्निक सब कुछ सेम है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है। फिर तीसरा अजम्पशन क्या किया है हमने, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यहां पे चेंज नहीं होती है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है। ठीक है, बिकॉज व्हेन द टेक्नोलॉजी चेंजेस प्रोडक्शन फंक्शन ऑल्सो चेंजेस। तो यहां पे हमने पहले से अज्यूम कर लिया है कि टेक्नोलॉजी यहां पे क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। द फोर्थ में हमने क्या लिखा है, इट इज पॉसिबल टू वेरी प्रपोर्शन इन विच द डिफरेंट इनपुट्स आर कंबाइंड, यानी कि हम यहां पे एक तरफ हमने कौन सा फैक्टर लिया है, एक तरफ हमने लैंड लिया है और दूसरी तरफ हमने कौन सा फैक्टर लिया है बेटा, यहां पे वी हैव टेकन लेबर। तो लैंड और लेबर को जब हम कंबाइन करेंगे तो उनके जो प्रपोर्शन होंगे वो प्रपोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं रहेगा कि लैंड भी फिक्स रहेगी, लेबर भी फिक्स रहेगा, लैंड और लेबर का प्रपोर्शन क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा जब हम उसको कंबाइन करेंगे। फाइन, दैट इज आवर फोर्थ assumption. Now our fifth assumption is this law is generally applicable more in the field of production. यानी जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन में तो इंडस्ट्री भी आती है, एग्रीकल्चर भी आता है, तो हर जगह पे ये लॉ एप्लीकेबल होता है, बट ज्यादातर ये लॉ एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल, बट मोर इट वॉज एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। द सिक्स्थ assumption is here the effect of change in output is due to change in the variable factor. अब यहां पे हमने एक फैक्टर को तो फिक्स मान लिया है लैंड को, और एक को हमने वेरिएबल मान लिया है लेबर को। तो जो आउटपुट में चेंज होगा, यहां पे टोटल प्रोडक्शन चेंज होगा, तो वो टोटल प्रोडक्शन जो चेंज हो रहा है वो टोटल प्रोडक्शन किसकी वजह से चेंज होगा, लैंड की वजह से नहीं चेंज होगा, लेबर की वजह से चेंज होगा, क्योंकि लैंड को तो हमने फिक्स फैक्टर मान लिया, लैंड तो यहां पे चेंज ही नहीं हो रही है। तो जो भी हमारा प्रोडक्शन में चेंज होगा दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फिक्स फैक्टर, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। और उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं, यानी हम इजीली पता लगा सकते हैं, ऐसा हमने अज्यूम किया है। और लास्ट हमारा अजम्पशन कौन सा है, सेवंथ वन, हियर द प्रोडक्ट्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स। यानी यहां पे हम तीन तरह के प्रोडक्ट लेंगे, एक तो हम टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट लेंगे, एक हम एपी यानी एवरेज प्रोडक्ट लेंगे, और एक हम एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट लेंगे। तो ये जो तीन तरह के प्रोडक्ट हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, इन सबको हम किस में डिफाइन कर सकते हैं, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल यूनिट्स में। यानी या तो ये क्विंटल में होगा, टन में होगा, जमीन है तो एकड़ में होगी, हेक्टर में होगी, इस तरह से, लेबर है तो यूनिट्स में होंगे। समझ में आ रहा है? तो दिस आर our 7 assumption for this law. Now before we start our question, law of variable proportion, its schedule and diagram,
it is very important for us to know certain concept without which we do not able to understand the law of variable proportion very easily. So here are the three concepts. The first concept is the TP, total product, AP, average product, and the MP is a marginal product. Now here, what we mean by total product first? Total product means what? Total product, it means it is a sum total volume of production or the total number of units produced within a given fixed factor and the variable factor. यानी जितने भी फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर आपको दिए हुए हैं उससे आप जितना भी टोटल प्रोडक्शन करोगे, जितने भी टोटल यूनिट्स बनाओगे, वो आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? इट शोज द रेशियो बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. यानी हमने यहां पे वेरिएबल फैक्टर कौन सा लिया हुआ है? लेबर. और फिक्स फैक्टर लैंड लिया हुआ है. तो लेबर में चेंजेस आने की, जो लेबर में हम चेंज करेंगे तो टोटल में भी चेंज आएगा. ठीक है. तो ये क्या बताता है? रेशियो बताता है. रेशियो हम कैसे निकालेंगे? जब हम डिवाइड करेंगे तब. ठीक है. तो एवरेज प्रोडक्ट क्या बताता है? एवरेज प्रोडक्ट हमको ये बताता है, इट शोज टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट. यानी कि टोटल आउटपुट पर यूनिट, एक एक लेबर के हिसाब से, एक एक लेबर ऐड करने से हमारा टोटल प्रोडक्ट में कितना कितना इंक्रीज होगा. ठीक है, वो चीज. और दूसरा, पर यूनिट ऑफ आउटपुट अगर हमको निकालना है तो हमको किससे निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रोडक्ट से निकालना पड़ेगा. फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, सी हियर, ये हमने इक्वेशन दिया हुआ है एवरेज प्रोडक्ट का. तो एवरेज प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट विथ क्यू. हियर क्यू मीन्स व्हाट? Here TP means total product and the Q means unit of variable factors. Suppose total production हमारा 100 है. कितना है? 100. और मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर मेरे पास कितने हैं? 5 लेबर्स यूज किए मैंने. तो 5 लेबर की मदद से मैंने 100 प्रोडक्शन किया, टोटल प्रोडक्शन. तो व्हाट विल बी द पर यूनिट आउटपुट और पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर आउटपुट? द आंसर विल बी 20. So this 20 will be our average product per unit output variable factor. Okay. Now the third one is the marginal product. Okay. Now here the marginal product means the change in total product due to change in the additional or adding the one extra additional variable factor. तो जब हम कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एडिशनल यूनिट ऐड करेंगे वेरिएबल फैक्टर का. यानी मैं अगर एक लेबर बढ़ाऊंगा तो उसकी वजह से मेरे टोटल प्रोडक्ट में जो चेंजेस आएंगे उस चेंजेस को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. सो मार्जिनल प्रोडक्ट मींस चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. यानी एक वेरिएबल फैक्टर ऐड करने से जो टोटल प्रोडक्ट में जो चेंजेस आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट. फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, नाउ सी हियर, दिस इज द इक्वेशन फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स हियर दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डेल्टा. डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज. सो एमपी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू. चेंज इन क्यू टीपी. सो हियर चेंज इन टीपी indicate the change in total product and the change in Q indicate the change in the यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. तो अगर वेरिएबल फैक्टर के अंदर कोई भी चेंज होता है तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट में भी चेंज आएगा. उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे. दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन इन दिस लेक्चर. और दूसरा इक्वेशन इसका क्या है? एमपी इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1. टीपी रिप्रेजेंट टोटल product. Okay. Now here you can see the schedule, okay, of law of variable proportion. In this schedule you can see that I have drawn different type of columns. In the first column
I have given land, which is assumed to be a fixed factor here. हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लैंड लिया है और लैंड को हमने कौन सा फैक्टर अज्यूम कर लिया है, फिक्स फैक्टर मान लिया है. दूसरे कॉलम में हमने लिया है यूनिट्स ऑफ लेबर और लेबर को हमने क्या मान लिया है, वेरिएबल फैक्टर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेबर वेरिएबल फैक्टर है, तो लेबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 10. ठीक है, पर लैंड यहाँ पे क्या रह रही है, फिक्स ही है, क्योंकि लैंड को हमने फिक्स फैक्टर माना है. फिर थर्ड हमारा कौन सा टाइप है, कॉलम है टीपी. टीपी मींस टोटल प्रोडक्शन. ओके, तो टोटल प्रोडक्शन मिल गया हमको, विच ऑल्सो वेरी, जो चेंज हो रहा है. फिर हमको मिला एवरेज प्रोडक्ट इन द फोर्थ कॉलम. हाउ वी विल गेट द एवरेज प्रोडक्ट, दैट विल ऑल्सो डिस्कस. एंड इन द फिफ्थ कॉलम I have given the marginal product. Okay, how we will define the marginal product, that we will also discuss here. And in the last column we have given the stage of production. So in the law of variable proportion, as you can see here, that there are three stages. The first stage is known as increasing return, in which the total product, average product and marginal product all are rising, all are increasing. That is why it is known as increasing return. In the second stage, you can see here, it is known as decreasing return. Why it is known as decreasing return? Because in the second stage, the total product, average product and the marginal product, out of these three, the total product will increase, but at a decreasing rate. But other two, the average product and the marginal product, both are decreasing. That is why it is known as decreasing return. And in the third one, in the negative return, what it has been given, in the third one it is given that negative returns. Why it is negative return? Because in the third one, third stage, the total production decreases, average production also decreases, and marginal production also decreases, and it becomes zero, it becomes negative. So when it becomes negative, that is why it is known as negative returns. Now let's discuss the schedule in detail. Now here, as you can see here, that land is kept as a fixed factor. Land has been kept as a fixed factor and the labor's units are kept as a variable factor. Now suppose here, in the 5-acre land, suppose we need only 5 number of laborers or 4 number of laborers. So in a 5-acre land, what is our optimum combination of land and labor? कब तक प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए? जब तक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन नहीं आएगा तब तक. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज कि 5 एकड़ लैंड है, कितनी, 5 एकर्स, और उसमें हमको जरूरत भी कितने लेबर की है, 5 लेबर्स की ही जरूरत है. तो स्टार्टिंग में द लैंड, द फिक्स फैक्टर्स आर मोर एज कंपेयर टू द लेबर्स वेरिएबल फैक्टर. तो यहां पे आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में लैंड ज्यादा है और लेबर कम है. तो जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, लेबर्स जो हैं वो ऐड करते जाएंगे किसके ऊपर, ऑन द फिक्स फैक्टर दैट इज लैंड. तो वैसे वैसे टोटल प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. इट विल इंक्रीज फ्रॉम 6 to 50. So in the initial stage 1, the fixed factor that is land is more compared to variable factor that is labor. तो जैसे जैसे हम लेबर को ऐड करते जाएंगे किसके काम के लिए, लैंड के ऊपर, वैसे वैसे लैंड की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेबर की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा. और टोटल प्रोडक्शन यहां पे कैसे बढ़ेगा, it is not only increasing but it is increasing at an increasing rate. How it will increase at an increasing rate? Now see, first the difference between the 6 to 16, when we are adding first labor, at that time our total production is 6. Okay, now when we add second labor, our total production is 16. So the difference between 6 to 16 is 10. Yes, now when we add third labor, the total product will increase from 16 to 27, which indicates that the total product increases by 11. Third one,
Now if we add the fourth number of labor, what will happen? Total product again increases from 27 to 40, but the difference is 13. So here you can see that the total product is just not increasing from 6 to 40, but it increases at an increasing rate. First it increases at a 10, then 11, then at 13. So in the first stage, we can say that when we keep the land fixed and we keep adding the number of labors on the fixed factor land, स्टार्टिंग में हमारे पास लैंड ज्यादा है, लेबर कम है, तो जैसे जैसे हम लेबर लैंड के ऊपर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. बट इट विल नॉट इंक्रीज जस्ट, इट विल इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट. अप टू विच यूनिट? अप टू 4 और 5 लेबर्स, बिकॉज आवर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन इज 5. तो 5 एकड़ में मुझे 5 लेबर की जरूरत थी, तो जब तक 5 लेबर नहीं होंगे या 4 लेबर नहीं होंगे, तब तक मेरा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एट अ इंक्रीजिंग रेट. क्लियर टू एवरीवन? नाउ सेकंड थिंग, जैसे जैसे हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा. एवरेज प्रोडक्शन हम कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला क्या था एवरेज प्रोडक्शन का? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टीपी डिवाइडेड बाय क्यू. ओके, तो यहां पे हमको फॉर्मूला के हिसाब से व्हेन वी ऐड 1 लेबर, what happens? The total production is 6. So when this 6 is divided with 1, the answer is 6. When 16 is divided by with 2, the answer is 8. When total production 27 divided by Q, number of variable factor, that is labor, 27 divided by 3, that is 9. So this is how we can get the average production. We will get average production by dividing TP into Q. This land is our, sorry, not land, but this labor is our Q, that is variable factor. Okay, so यहाँ पे आप देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है. In the first stage, because we are adding more number of labors on the fixed factor land, average product भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. 6, 8, 9, 10, 10. So in the first stage, TP also increases, AP also increases, okay, and in the last you can see the MP. अब हमको MP कैसे मिलेगा? How will we get the marginal product? Marginal product का हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा TP divided by delta Q, and this one is our Q and this is our TP. So suppose when we add first labor, our total product is 6. Here we do not have anything to compare in the above side, so here we have written 6 first of all. Now suppose the marginal product means when we are adding one extra additional unit, there will be a change in total product and that is known as marginal product. तो जैसे ही हमने एक यूनिट की जगह, पहला लेबर की जगह मैंने कौन सा लेबर यूज किया, दूसरा लेबर ऐड किया, तो उसकी वजह से टोटल में डिफरेंस आया. टोटल 6 से कितना हो गया, 16 हो गया. तो यहां पे डिफरेंस आया 10. ओके, यहां पे कितना डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस आया. फिर मैंने एक और लेबर ऐड किया फ्रॉम 2 to 3 लेबर, तो यहां पे टोटल में और डिफरेंस आया. कितना डिफरेंस आया, 27 से 40 हो गया. तो 27 से 40 इट मीन 13 का डिफरेंस आया. तो हमारा एमपी क्या बताता है कि जैसे जैसे हम कोई एक लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जाएंगे, तो चेंज इन वेरिएबल फैक्टर डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हमारा चेंज कितना आया था टोटल प्रोडक्ट में, 10. तो यहाँ पे हमने 10 रखा है. यहाँ पे हमारा चेंज आया था 11, तो यहाँ पे हमने 11 रखा है. यहाँ पे चेंज आया 13, तो हमने 13 रखा है. फिर 40 और 50 के बीच का डिफरेंस आएगा 10, और 4 और 1 के बीच का डिफरेंस आएगा 1. तो 10 डिवाइडेड बाय 1, आवर आंसर विल बी 10. दिस इज हाउ वी कैन गेट द एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट. और मार्जिनल प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा 6 से 10, 11, 13 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो बेटा हमने फर्स्ट स्टेज में को इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों बोला है? वाई वी से दैट द फर्स्ट स्टेज इज अवर इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज, बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेज जैसे ही हमने लैंड को फिक्स रखा है और हम लेबर ऐड करते जाएंगे, हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट. हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है एट अ
sorry, not at an increasing rate but increases, then our marginal product also increases. So तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, that is why it is known as increasing return. फिर दूसरे स्टेज में क्या होगा, our second stage start from here, okay, from 6th number of unit labor. Now अब क्या होगा कि अभी भी अगर हम लेबर ऐड करते जाएंगे on the fixed factor that is land, तो how many labors are required? Only 5 labors are required on the 5 acre land. But now if we keep adding the labor on the fixed factor of land, what will happen? There will be more variable factor as compared to land fixed factor. तो लेबर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी क्योंकि लैंड के ऊपर ओवरबर्डन आ जाएगा. सो देयर इज ओवरबर्डन ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑन द फिक्स फैक्टर. और उसकी वजह से बाद में क्या होगा कि आप यहां पे देखो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है, यानी कि 6 नंबर के लेबर पे 54 हो गया टोटल प्रोडक्ट, 7 में 56 हो गया और 8 में वापस 56 हो गया, पर ये इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट हो रहा है. जैसे कि पहले हमारा ये जो डिफरेंस था ये कितना था, ओके. नाउ यू कैन सी हियर कि यहां पे पहले डिफरेंस 10 इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट था, और अब क्या हुआ 50 से 54 ओनली 4 डिफरेंस इज देयर, 54 to 56 only 2 difference is there. So we cannot say that total product is not increasing. Total product is increasing, but it increases at a decreasing rate. So in the second state TP increases but at a decreasing rate, but it becomes maximum. और ये कहां पहुंच जाता है, मैक्सिमम पे पहुंच जाता है. तो यहां पे देखो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 56 है टोटल प्रोडक्ट में, दैट इज व्हाई इट इज हाईएस्ट. तो एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज द टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन वो हाईएस्ट हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है. और उसकी वजह से बिकॉज नाउ द टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, ये इसको हम इससे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर्स से, तो हमको पता चलेगा कि एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज में कम हो रहा है. इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 10 to 9 to 8 to 7. सो एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजिंग बट स्टिल पॉजिटिव, एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम 10 to 0. Okay, here one thing is very important. Whenever the TP is maximum, here the TP is maximum at which point? Here you can see that the TP is maximum at 56 at unit number 8 labor. At that time the marginal product is 0. Okay, so when TP is maximum, the MP is 0. You have to remember this. तो यहां पे हुआ क्या, सेकेंड स्टेज में टीपी जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है बट इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड एपी ऑल्सो डिक्रीजेस एंड एमपी ऑल्सो डिक्रीजेस. ओके, नाउ इन द थर्ड स्टेज, सपोज इन द थर्ड स्टेज if we keep adding the variable factor on the fixed factor, अभी भी हम लेबर ऐड करते ही जा रहे हैं, किसके ऊपर, लैंड के ऊपर. हमको चाहिए था सिर्फ 5 लेबर 5 एकड़ लैंड के ऊपर, अब हो गए हैं 9 और 10 हमने और ऐड कर दिए. सो नाउ इट इज सो मच एक्सेसिव फैक्टर्स आर ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स आर ऑन द फिक्स लैंड. सो अब लेबर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है लैंड के ऊपर, तो लैंड की भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और लेबर की भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. और उसकी वजह से जो टीपी पहले स्टेज में इंक्रीजिंग था एट अ इंक्रीजिंग रेट, दूसरे स्टेज में भी इंक्रीजिंग था बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, वो अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. देखो यहां पे 56 था, उसकी जगह अब ये 54 और 50 हो गया. तो थर्ड स्टेज में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑन द फिक्स फैक्टर, दोनों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो थर्ड स्टेज में टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से एपी भी डिक्रीज होगा, और एमपी जो पहले ही सेकेंड स्टेज के एंड में 0 हो गया था वो अब किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा. क्यों, क्योंकि टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, इसीलिए ये नेगेटिव हो जाता है. तो हमने यहां पे क्या सीखा बेटा इस टेबल में, इस टेबल में हमको ये पता चलता है कि इन द फर्स्ट स्टेज जब जब हम वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर को पहले हम लैंड के ऊपर ऐड करते जाएंगे, कौन से स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में. तो फर्स्ट स्टेज में जैसे जैसे हम लेबर ऐड करते जाएंगे लैंड के ऊपर, तो स्टार्टिंग में लैंड ज्यादा है और लेबर कम है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा
एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, बट टीपी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। दूसरे स्टेज में जब लेबर ज्यादा हो जाएंगे और लैंड कम हो जाएगी, लैंड के ऊपर बर्डन बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो दूसरे स्टेज में क्या होगा, दूसरे स्टेज के अंदर दिस टीपी विल इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, और एपी डिक्रीज होगा, एमपी भी डिक्रीज होगा, और जब टीपी मैक्सिमम होगा उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ओके, दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में नाउ इफ वी कीप एडिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑन द फिक्स फैक्टर, अब लेबर कितने हो गए, 9-10, वो काफी ज्यादा है, और लैंड तो अभी भी 5 एकड़ की 5 एकड़ है, तो इतने ज्यादा वेरिएबल फैक्टर जब फिक्स फैक्टर के ऊपर आएंगे तो दोनों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, फिक्स की भी वेरिएबल की भी। ठीक है, तो अब जाके थर्ड स्टेज में टीपी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एपी विल ऑल्सो डिक्रीज, बट एपी इज स्टिल पॉजिटिव, इट इज नॉट जीरो, इट इज नॉट माइनस। और एमपी जो सेकेंड स्टेज में ही जीरो हो गया था वो अब थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और एमपी क्योंकि नेगेटिव हो गया है इसीलिए इस थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, इतना सबको समझ में आ गया आप लोगों को। Now here you can see the diagram which will give you more clarification. It is very easy. Okay. In this diagram you can see here that on the y-axis I have given TP, AP and MP, total product, average product and marginal product. On the x-axis I have given the units of labor. Okay. So y-axis represent total product, average product, marginal product. X-axis represent units of labor which is a variable factor. अब यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस बनाए हैं। दिस इज अवर स्टेज नंबर 1, ओके, दिस इज स्टेज नंबर 2 एंड दिस इज स्टेज नंबर 3। ओके, हियर if you see this total product line, so as we start adding the number of labors on the fixed factor that is land, स्टार्टिंग में हम जैसे जैसे लेबर लैंड के ऊपर ऐड करते जाएंगे, यहां 0 से 4 तक या 5 तक, ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेबर ऐड करते जाएंगे, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, टेबल में हमने क्या देखा था, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। ओके, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में लैंड कम ज्यादा है और लेबर कम है तो प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेबर ऐड करते जाएंगे स्टार्टिंग में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। तो यहां पे ये लाइन जो दिख रही है आपको, इस लाइन पे आप देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, अप टू दिस एफ पॉइंट द टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट एज वी एडिंग नंबर ऑफ लेबर्स ऑन द लैंड। तो एफ तक क्या हो रहा है, टीपी जो है वो लाइन कौन सी है, स्ट्रेट अपवर्ड लाइन है, टोटल प्रोडक्ट की लाइन, वो क्या इंडिकेट करती है, that TP will increase at a increasing rate up to F point. So that is why this F point is called inflection point. But after F point, after F, okay, what happens? अगर हम और नंबर ऑफ लेबर ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा सेकेंड स्टेज में, फिर आफ्टर F, यहां पे आप देखो कि ये TP लाइन जो है वो इट इज मूविंग अपवर्ड बट इट स्लाइटली गोइंग डाउन। इट इंडिकेट्स that after F point the TP increases but it increases at a decreasing rate. तो F point तक TP increases at a increasing rate in the first stage and in the initial second stage, after first stage, second stage में TP is still increasing but at a decreasing rate. Then TP reaches to maximum, that is point M, and in the third stage the TP will decrease. Why it decreases? क्योंकि थर्ड स्टेज के अंदर अब वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा हो गए, हम ऐड करते गए, और फिक्स फैक्टर लैंड बहुत कम थी, तो लैंड कम थी, लेबर बहुत ज्यादा ऐड कर दी हमने, लेबर की संख्या ज्यादा हो गई, तो दोनों की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, लैंड की भी लेबर की भी, और इसीलिए हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। तो फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट अप टू एफ पॉइंट, देन इन द सेकेंड स्टेज you can see that the TP line is moving towards downward. So it is increasing but at a decreasing rate. Then at point M, at the end of second stage, it is maximum,
and then it will start decrease in the third stage. Same in the first stage, when the TP is increasing at an increasing rate, you can see here the green line that shows MP. तो MP भी इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां पे MP मैक्सिमम हो गया है और फिर MP डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है. सेम when TP increases, you can see this red line. स्टार्टिंग में AP भी फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो फर्स्ट स्टेज कहां पे खत्म होगा, फर्स्ट स्टेज यहां पे खत्म होगा. सपोज इफ आई सी से E point, at this A point this MP line and AP line both are intersecting each other, at which this AP is maximum. MP तो मैक्सिमम कहां हो जाता है, मान लो ये L पॉइंट है, तो ये L पॉइंट के ऊपर MP तो मैक्सिमम हो जाता है, फिर MP डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज TP इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. और E पॉइंट पे दोनों लाइन AP लाइन और MP लाइन दोनों एक दूसरे को कट करती है, तो E पे क्या हो जाएगा हमारा, MP इज इक्वल टू AP. और जब MP इज इक्वल टू AP होता है तो AP उसके हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे. समझ में आया इतना. और फर्स्ट स्टेज में आप देखो कि TP इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, MP ऑल्सो इंक्रीजेस, AP ऑल्सो इंक्रीजेस. लेकिन यहां पे आप देखोगे कि फर्स्ट स्टेज में कौन सी लाइन ऊपर है, इन द फर्स्ट स्टेज द MP लाइन इज ग्रेटर देन AP लाइन. सो MP ऊपर की तरफ है, AP नीचे की तरफ है, तो फर्स्ट स्टेज में MP इज ऑलवेज ग्रेटर देन AP. ओके, नाउ सी द सेकेंड स्टेज. सेकेंड स्टेज में फिर क्या होगा कि जैसे जैसे हम लेबर ऐड करते जाएंगे लैंड के ऊपर, नाउ TP विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बट इट इज मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड. तो TP increases at a decreasing rate in the second stage, and in the second stage this AP also decreases and MP also decreases, and at the end of second stage when this TP is at M point, which is the maximum point of TP, at that time you can see here at 8 number of labor कि यहां पे MP हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So when TP is maximum, what happens, the MP becomes 0. So the second stage ends where TP is maximum and the MP is 0. Okay, and in the second stage you can see here that the AP line is at upward position and the MP is at the downward position. So second line में AP ऊपर है, MP नीचे है. So in the second stage AP is greater than MP. Okay, now we are talking about the third stage. In the third stage when we are keep adding the number of labors, यानी मैं 8 से ज्यादा लेबर अगर ऐड करता जाऊंगा किसके ऊपर, वेरिएबल फैक्टर कौन सा हमारा, लेबर, लैंड के ऊपर. तो अब लैंड हमारी 5 एकड़ है और लेबर हमारे 9-10, यानी बहुत ज्यादा हो गए, यानी एक्सेसिव लेबर ऑन द फिक्स फैक्टर लैंड. तो बहुत ज्यादा लेबर हो गए तो ना तो लेबर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी ना लैंड की प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी. उसकी वजह से थर्ड स्टेज में आप देखो TP अब स्टार्ट क्या हो गया है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है. और जैसे ही TP डिक्रीज होना स्टार्ट होगा AP भी डिक्रीज होगा, पर AP अभी भी पॉजिटिव है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज पॉजिटिव. और MP जो कि पहले ही यहां पे 0 हो गया था, वो MP अब यहां पे देखो कि वो कहां चला गया है, -4 या -6 की तरफ चला गया है. समझ में आया. सो इन द थर्ड स्टेज व्हेन TP डिक्रीजेस AP ऑल्सो डिक्रीजेस बट AP रिमेन्स पॉजिटिव एंड MP बिकम्स नेगेटिव. तो हमने क्या सीखा बेटा इस डायग्राम में कि जैसे जैसे फर्स्ट स्टेज में हम लेबर ऐड करते जाएंगे किसके ऊपर, लैंड के ऊपर जो फिक्स फैक्टर है. तो स्टार्टिंग में लैंड कम है, लैंड ज्यादा है और लेबर कम है. उसकी वजह से स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम लेबर लैंड के ऊपर ऐड करते जाएंगे टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, एवरेज प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, सेकेंड स्टेज में हमने देखा कि जैसे जैसे हम लेबर अब ऐड करते जाएंगे वापस लैंड के ऊपर तो लेबर ज्यादा हो जाएंगे, लैंड कम हो जाएगी. उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होगी, तो TP इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट और उसकी वजह से AP भी डिक्रीज होगा, MP भी डिक्रीज होगा. और जब TP मैक्सिमम होगा उस टाइम पे MP क्या होगा, 0 होगा. ठीक है.
और तीसरा स्टेज अभी भी अगर हम लेबर ऐड करते जाएंगे तो टीपी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एपी विल ऑल्सो डिक्रीज बट इट विल रिमेन पॉजिटिव, और एमपी जो जीरो हो गया था एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज वो तो अब थर्ड स्टेज में माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर टू एवरीवन? Now here you can see, for the more clarification I have given the data. We will just read it out because I have already explained in detail the schedule of the law of variable proportion as well as the diagram also. So देखो फर्स्ट स्टेज में बेटा हम क्या करते हैं, which is known as increasing return. फर्स्ट स्टेज में हम जैसे जैसे मोर एंड मोर नंबर ऑफ लेबर ऐड करते जाएंगे, किसके ऊपर, लैंड के ऊपर. व्हाट विल हैपन टू टीपी? द टीपी इनिशियली increases at an increasing rate up to point F, but after point F the TP will increase but at a decreasing rate. That is why that F point is known as inflection point. फिर AP पे क्या होगा उस टाइम पे फर्स्ट स्टेज में, AP जो है TP इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, तो AP भी इंक्रीज होगा. सो AP इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द फर्स्ट स्टेज. और MP वो भी इंक्रीज ही होगा क्योंकि TP इंक्रीज हो रहा है, तो एमपी इंक्रीज होगा फर्स्ट स्टेज में, फिर वो मैक्सिमम हो जाएगा और वो डिक्रीज होना भी स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में. और फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको क्या दिखाया था, यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेज के अंदर, इन द फर्स्ट स्टेज यू कैन सी हियर कि हमारा ये जो एमपी लाइन है वो ऊपर है और एपी वाला लाइन नीचे है. सो इन द फर्स्ट स्टेज एमपी इज ग्रेटर देन एपी. ओके, और सेकेंड स्टेज में बाद में हम देखेंगे. सो यहां पे इन द फर्स्ट स्टेज विच वन इज ग्रेटर, एमपी इज ग्रेटर देन एपी. हियर यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट स्टेज एमपी इज ग्रेटर देन एपी. और फर्स्ट स्टेज एंड कहां पे होता है, जहां पे एमपी और एपी लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, तो वहां पे एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा. ओके, and at the end of first stage this AP is at maximum point. यहां पे आप डायग्राम देखो तो ये जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है यहां पे MP इज इक्वल टू AP हो जाएगा और यहां पे AP लाइन उसके मैक्सिमम पॉइंट पे है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेज नंबर 1 विच इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न. नाउ व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग रिटर्न? इंक्रीजिंग रिटर्न हमको क्यों मिलता है, क्यों फर्स्ट स्टेज के अंदर सारे के सारे, चाहे टोटल प्रोडक्ट हो, एवरेज प्रोडक्ट हो, मार्जिनल प्रोडक्ट हो, सारे के सारे प्रोडक्ट क्यों इंक्रीज होते हैं? व्हाई? द क्वेश्चन मस्ट बी रेज. तो फर्स्ट आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे रीजन लिखे, वी विल डिस्कस इट शॉर्टली. फर्स्ट वन इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता था, लैंड हमारी 5 एकड़ थी और लेबर हमने 1 से स्टार्ट किया था. तो जब तक लेबर 1 से 5 नहीं होंगे तब तक हमारे पास क्या था, फिक्स फैक्टर ज्यादा थे, यानी लैंड ज्यादा थी स्टार्टिंग में, और वेरिएबल फैक्टर लेबर हमारे पास फ्यू थे यानी बहुत कम थे. तो जैसे जैसे हम लेबर को ऐड करते गए स्टार्टिंग में लैंड के ऊपर, क्या हुआ, फिक्स फैक्टर जो है लैंड उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती कि बढ़ती गई क्योंकि उसको फुल्ली यूटिलाइज होने का चांस मिला. तो फर्स्ट स्टेज में व्हेन वी ऐड द लेबर्स, मोर नंबर ऑफ लेबर्स ऑन द लैंड, क्योंकि लैंड ज्यादा थी लेबर कम थे, तो जैसे जैसे लेबर ऐड करते गए क्या होता गया, लैंड का फुलर यूटिलाइजेशन हुआ और उसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. ओके, फिर दूसरा यहां पे क्या लिखा है हमने बेटा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. जैसे जैसे हम लेबर ऐड करते गए लैंड के ऊपर, तो स्टार्टिंग में लैंड ज्यादा थी लेबर कम थे, तो लेबर का, लैंड का तो फुलर यूटिलाइजेशन हुआ ही, पर साथ साथ लेबर को हमने किसके साथ कंबाइन किया, लैंड के साथ कंबाइन किया और उसकी वजह से लेबर की भी प्रोडक्टिविटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी, उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन आने लगा. तो फर्स्ट में हमने देखा कि फिक्स फैक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, सेकंड में फिक्स के साथ फैक्टर को, वेरिएबल को कंबाइन करने से वेरिएबल की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, फुलर यूटिलाइजेशन हुआ. और थर्ड अब क्या दिख रहा है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर. इंडिविजुअलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर का मतलब यह है कि कुछ फिक्स फैक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, देयर साइज इज वेरी लार्ज which cannot be divided into the small units, जिसको हम स्मॉल यूनिट में क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते. मान लो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है या मशीनरी है, ठीक है, या प्लांट है बहुत बड़ा है, तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. हो सकता है कि लैंड भी है,
बहुत बड़ी एकड़, बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है, तो उसको हमको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना है। तो इंडिविजुअलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर यानी कुछ फिक्स फैक्टर ऐसे होते हैं कि इसको हम शॉर्ट पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से जैसे जैसे हम उसके ऊपर लेबर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, वो लेबर ऐड होने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो फिक्स की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेबर की भी यानी वेरिएबल फैक्टर की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो दीज आर द 3 रीजंस व्हाई देयर इज ए इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर सेकेंड स्टेज देखो अब डिक्रीजिंग रिटर्न वाला। डिक्रीजिंग रिटर्न में हमने क्या देखा था कि अब जैसे जैसे लेबर अब ज्यादा हो जाएंगे, सेकेंड स्टेज में लेबर हम ऐड करते गए तो लेबर हो जाएंगे 6, 7, 8 और लैंड अभी भी 5 एकड़ ही रहेगी हमारी। तो लेबर ज्यादा होने से क्या होगा सेकेंड स्टेज में, एज वी एड मोर एंड मोर नंबर ऑफ लेबर्स इन द सेकेंड स्टेज ऑन लैंड, टीपी अब क्या होगा, इंक्रीज तो होगा बट कौन से रेट पे इंक्रीज होगा, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा और वो एम पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर एपी जो है बिकॉज टीपी इज नाउ इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो सेकेंड स्टेज में एपी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। और सेकेंड स्टेज में मैंने आपको क्या बोला था कि सेकेंड स्टेज में एमपी भी डिक्रीज होता है, एपी भी डिक्रीज होता है, बट फर्स्ट स्टेज में एमपी वॉज ग्रेटर देन एपी बट इन द सेकेंड स्टेज एपी वॉज ग्रेटर देन एमपी। यू कैन सी हियर, ये देखो सेकेंड स्टेज के एंड में टीपी मैक्सिमम पे पहुंच गया है और उस टाइम पे एमपी हमारा 0 हो गया है, ठीक है। और सेकेंड स्टेज में आप यहां पे देखो ये हमारी एपी लाइन है वो ऊपर है और एमपी लाइन उससे नीचे है, तो यहां पे सेकेंड स्टेज में क्या होगा, एपी विल बी ग्रेटर देन एमपी, ओके। और थर्ड स्टेज में मैंने सेकेंड स्टेज में मैंने अभी आपको क्या बताया कि एमपी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा और एमपी 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब एमपी 0 होता है उस टाइम पे टीपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ओके। नाउ रीजंस फॉर सेकेंड रिटर्न, रीजंस फॉर डिक्रीजिंग रिटर्न। सेकेंड स्टेज में हमको डिक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलता है बेटा, सेकेंड स्टेज में हमको डिक्रीजिंग रिटर्न इसलिए मिलता है क्योंकि पहले स्टेज में हमारे पास फिक्स फैक्टर नहीं, लैंड ज्यादा थी लेबर कम थे, हम लेबर ऐड करते गए, दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई, लैंड की भी लेबर की भी। पर सेकेंड स्टेज में इफ वी कीप एडिंग द नंबर ऑफ लेबर्स ऑन द फिक्स फैक्टर लैंड, तो सेकेंड स्टेज में हो सकता है कि लेबर की संख्या हमारे पास ज्यादा हो गई, बढ़ गई और लैंड की संख्या कम हो गई, ठीक है। तो लैंड के ऊपर ओवरबर्डन आएगा, हो सकता है कि जो प्रोडक्टिविटी हाई थी वो कम हो जाए। तो यहां पे आप देखो कि उसका रीजन क्या लिखा है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। हर एक चीज का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हमने यहां पे लैंड लिया था और लेबर लिया था, तो लैंड हमने 5 एकड़ लिया था और लेबर हमने 1 से लेके 10 तक हम ऐड करते गए थे और हमने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मान लो माना है 5, तो 5 एकड़ लैंड 5 लेबर्स वो हमारा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। तो जब तक 5-5 नहीं होगा तब तक टीपी इंक्रीज होगा, ठीक है। पर जैसे ही आप लेबर बढ़ा दोगे बाद में 5 से ज्यादा, तो हमारा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन तो क्या था, 5 = 5। तो लेबर ज्यादा होने की वजह से ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा, वेरिएबल फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे और उसकी प्रोडक्टिविटी घटेगी लैंड की या फिक्स फैक्टर की, उसकी वजह से प्रॉपर कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से टीपी भी इंक्रीज होगा एट अ डिक्रीजिंग रेट और एमपी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा लिखा है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि मान लो कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, विच फैक्टर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर, वन फैक्टर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर बट इट हैज सर्टन लिमिट, कि कहां तक आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हमने यहां पे मान लो कि लैंड और लेबर का एग्जांपल लिया है, मान लो कि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि कैपिटल या मशीन एंड लेबर। तो मशीन और लेबर एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, तो हो सकता है कि हमको लेबर यूज नहीं करना है, हमको तो मशीन यूज करना है, तो लेबर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर मशीन एंड मशीन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर लेबर और कैपिटल, ओके। पर उसकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट एक लिमिट आ जाएगी कि जब आप लेबर को कैपिटल की जगह और कैपिटल को लेबर की जगह यूज नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, लेबर बढ़ जाते हैं, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी में प्रॉब्लम आता है। एक स्टेज ऐसा आता है कि जहां पे हम ऑल लेबर ऐड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट मोर लेबर इन प्लेस ऑफ लैंड और इन प्लेस ऑफ कैपिटल। तो ये दो रीजन है
कि जिसकी वजह से सेकेंड स्टेज में डिक्रीजिंग रिटर्न आता है। फिर थर्ड स्टेज की बात करो, थर्ड स्टेज हमारा नेगेटिव रिटर्न है। नेगेटिव रिटर्न कब आएगा? जब अभी भी हम लेबर ऐड करते जाएंगे, यानी यूनिट नंबर 9 एंड 10। तो अब देखो लेबर 9 10 हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा हो गए, एक्सेसिव नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर ऑन द फिक्स फैक्टर लैंड। तो लैंड कम हो गई, बहुत ज्यादा कम होगी, लेबर बहुत ज्यादा हो गए, तो दोनों की प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी, दोनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो थर्ड स्टेज में टीपी जो है वो जो मैक्सिमम पे पहुंचा था उसकी जगह अब टीपी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग फर्स्ट टाइम। फिर जब टीपी डिक्रीज हुआ तो एमपी भी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होगा, सॉरी एपी, पर एपी जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखो जब तक टीपी जीरो नहीं होगा तब तक एपी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एपी हमको मिलता किससे है? टीपी से, पर यूनिट आउटपुट है वो टीपी का। तो जब तक टीपी जीरो नहीं होगा एपी भी जीरो नहीं होगा, यानी टीपी जीरो होगा या माइनस में होगा तो ही एपी माइनस में या जीरो में होगा। तो यहाँ पे टीपी डिक्रीज होता है, माइनस नहीं होता है, इसीलिए एपी भी डिक्रीज होगा पर इट विल स्टिल रिमेन पॉजिटिव। ओके, और थर्ड स्टेज में क्या लिखा है? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जैसे सी इन दिस डायग्राम, थर्ड स्टेज में हमारा टीपी डिक्रीज हो गया, एपी भी डिक्रीज हो गया बट इट स्टिल पॉजिटिव, और एमपी हमारा किस में चला गया? नेगेटिव में चला गया। अब थर्ड स्टेज का हमारा क्या रीजन है? What are the reason behind the negative return in the third stage? The first one is limitation of fixed factors. अभी मैंने बोला कि फिक्स फैक्टर की भी एक लिमिट होती है। लैंड हमने फिक्स मानी थी, उसके ऊपर हम लेबर ऐड करते गए, ठीक है, तो लेबर ऐड करने की भी लिमिट होती है। लैंड हमारे पास 5 एकड़ ही थी और उसमें हमने बोला था कि 5 एकड़ पे जमीन पे हमको 5 लेबर की जरूरत है, दैट इज आवर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। तो फिक्स फैक्टर की भी लिमिट होती है, ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर की भी लिमिट होती है कि उसको कहां तक इंक्रीज कर सकते हैं ऑन द फिक्स फैक्टर। तो थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है? फिक्स फैक्टर की लिमिट आ जाती है। फिक्स फैक्टर नाउ कैन नॉट एब्जॉर्ब द मोर वेरिएबल फैक्टर्स। तो फिक्स फैक्टर की लिमिटेशन की वजह से, क्योंकि फिक्स फैक्टर जो है वो शॉर्ट पीरियड में फिक्स रहता है। सी हियर द फिक्स फैक्टर आर फिक्स इन नेचर इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर फिक्स रहता है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, पर हम लेबर तो उसके ऊपर बढ़ाते ही जा रहे हैं। अगर फिक्स फैक्टर भी हम लोग चेंज कर पाते हैं, यानी जमीन अगर मैं बढ़ा पाता, लेबर बढ़ते हैं वैसे वैसे, तो प्रॉब्लम ही नहीं होता। पर यहां पे लिमिट क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, और शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम फिक्स फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो वो उसकी लिमिट है, उसकी वजह से नेगेटिव रिटर्न आता है। दूसरा क्या लिखा है? पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर और एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर। अब यहां पे देखो थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है? लेबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, 9 10 हो जाते हैं और फिक्स फैक्टर 5 हो जाते हैं, तो लैंड बहुत कम बचती है और लेबर बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, एक्सेसिव नंबर ऑफ लेबर्स। तो एक्सेसिव नंबर ऑफ लेबर होने की वजह से इतना ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है लेबर के ऊपर भी और लैंड के ऊपर भी कि दोनों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और दोनों की प्रोडक्टिविटी कम होने से क्या होगा? नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। Okay, so when too many variable factors are on the fixed factor, what does it indicates? It indicates that in the third stage the MP becomes negative. और थर्ड हमने क्या लिखा है? In the third you can see there is a decrease in the efficiency of variable factor. तो थर्ड स्टेज में जो फर्स्ट हमने देखा कि फिक्स फैक्टर की एफिशिएंसी कम होती है, और थर्ड स्टेज में हमने देखा कि वेरिएबल फैक्टर की भी एफिशिएंसी कम होती है। क्यों? क्योंकि एक लिमिट होता है कॉम्बिनेशन का। फिक्स फैक्टर हम बढ़ा नहीं सकते, वेरिएबल फैक्टर आप बढ़ाते जा रहे हो, सो ओवरबर्डन ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑन द फिक्स फैक्टर क्रिएट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर नॉट ओनली द फिक्स फैक्टर प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज बट द वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज। तो थर्ड स्टेज में नेगेटिव रिटर्न इसलिए मिलता है क्योंकि वेरिएबल फैक्टर एक्सेसिव हो जाते हैं ऑन द फिक्स फैक्टर, ठीक है, और फिक्स फैक्टर की भी प्रोडक्टिविटी घटती है, वेरिएबल फैक्टर की भी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट प्रपोर्शन भी बोलते हैं और रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं। इसके हमने 3 स्टेजेस देखे, इंक्रीजिंग, जिसके अंदर हमको टीपी, एपी और एमपी ये 3 चीजें देखने को मिली।
फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्टार्टिंग में लेबर कम है और लैंड ज्यादा है, यानी फिक्स फैक्टर ज्यादा, वेरिएबल फैक्टर कम, तो टीपी इंक्रीज होता है एट अ इंक्रीजिंग रेट एंड देन इट विल डिक्रीज डिमिनिशिंग रेट। फिर फर्स्ट स्टेज में बिकॉज टीपी इज इंक्रीजिंग, ओके, तो एपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और बाद में एपी कहां पहुंच जाता है, मैक्सिमम में पहुंच जाता है। और फर्स्ट स्टेज में एमपी में क्या होगा, बिकॉज टीपी इज राइजिंग, एमपी इज ऑल्सो राइजिंग, इट बिकम मैक्सिमम एंड इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ओके। तो फर्स्ट स्टेज में तीनों इंक्रीज होते हैं, टीपी भी, एपी भी, एमपी भी, बट टीपी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। फिर दूसरे स्टेज में क्या होगा, नाउ लेबर हम बढ़ाते गए तो वेरिएबल फैक्टर ज्यादा हो गए, फिक्स फैक्टर कम हो गए, तो ओवरबर्डन आया वेरिएबल फैक्टर का फिक्स फैक्टर के ऊपर, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से सेकेंड स्टेज में टीपी विल इंक्रीज, बट टीपी विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी टीपी इंक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, और बाद में टीपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। फिर उसकी वजह से एमपी और एपी, चाहे एमपी हो या चाहे एपी हो, दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब मैंने बताया था कि व्हेन द टीपी इज मैक्सिमम द एमपी बिकम्स जीरो, तो एमपी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, एपी ऑल्सो डिक्रीजेस एंड एमपी ऑल्सो डिक्रीजेस, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज जीरो। और थर्ड स्टेज में बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर, बहुत ज्यादा वेरिएबल फैक्टर हो जाते हैं, फिक्स फैक्टर हम बढ़ा नहीं पाते, तो फिक्स फैक्टर कम हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, तो लैंड की भी प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेबर की भी एफिशिएंसी कम होती है। उसकी वजह से अभी तक तो टीपी फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रिटर्न था, सेकेंड स्टेज में इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रिटर्न था, और अब थर्ड स्टेज में टीपी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो एपी भी डिक्रीज हो जाएगा, बट एपी अभी भी कैसा है, पॉजिटिव है, इट नेवर बिकम जीरो। मैंने बताया आपको कि जब तक टीपी जीरो नहीं होगा एपी भी जीरो नहीं होगा, और जब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है टीपी, तो लास्ट स्टेज में थर्ड स्टेज में एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव, यानी जीरो हो जाता है। एंड एट द एंड we will have a quick review of importance of this law. Now, why this law is very important, or the usefulness of law is what? This law is important law not only in the field of production and in the field of agriculture sector only. Some people believe that this law of variable proportion will be very useful and it is only restricted or applicable only in the field of production and agriculture, but it is not true. ये जो नियम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, ये सिर्फ प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर सेक्टर तक सीमित नहीं है, ठीक है। इसके अंदर इसका जो इंपॉर्टेंस है ये और भी और जगह पे इंपॉर्टेंट काम में आ सकता है या काम में आता है, जैसे कि प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर फील्ड को अगर आप छोड़ दो तो माल्थस का एक पॉपुलेशन थियरी है, विच इज गिवन बाय माल्थस। तो माल्थस की एक पॉपुलेशन थियरी आती है, उसके अंदर भी ये यूजफुल है। फिर जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, किसके अंदर, इन द प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर, यानी कीमत निर्धारण के अंदर या कीमत डिटर्मिनेशन के अंदर जब कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें भी ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमको काम में आता है। फिर अगर तीसरी बात करें, एक और थियरी है हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें हम लेबर का सैलरी या फैक्टर की सैलरी या वेजिस या उनका रेम्यूनरेशन किसके बेस पे डिसाइड करते हैं, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बेस पे डिसाइड करते हैं। उस थियरी में भी दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और अ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली in the field of production and agriculture, but it is also equally important in the field of Malthus population theory, in the cost in terms of price determination, and in the marginal productivity theory of distribution. So this is all about the law of variable proportion or the short-term production function. I hope it is clear to everyone. We have discuss the detailed answer which will be very useful
This question is frequently asked in the university exam, so you have to prepare it very well. Thank you so much.